Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Students, now we will start a new chapter. Chapter number 7, Commercial Mathematics. Okay students, so today's first topic is variation. So can you tell me what is the variation? Yes, students, variation, that means in variation, if we change the value of one quantity, okay students, then there is some change the value of other quantity also. Okay students, that means वेरिएशन का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वन क्वांटिटी में चेंज करते हैं सो सिंपल ऐसे ही उसकी दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ चेंज होगा. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि वन क्वांटिटी में चेंज हुआ है तो सेकंड में नहीं होगा. नो, अगर वन क्वांटिटी में कुछ चेंज होता है तो सेकंड क्वांटिटी में भी कुछ चेंज होगा. सो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो इट इज कॉल्ड variation. Okay students, and students, there are two type of variation. Type of variation, one is direct variation and second one is inverse variation. Okay students, so students, first we talk about direct variation. So what is this? Direct variation, that means one quantity increase, yes, with the other increases. Okay students, that means अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, और इफ वन क्वांटिटी इज decrease, so that means then the other also. Okay students, that means अगर वन इंक्रीज है तो सेकंड वन भी इंक्रीज है एंड वन डिक्रीज है सो सेकंड भी डिक्रीज है. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो दैट द रेशियो इज remains constant. ओके, दैट मीन्स जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, और वी कैन से इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके स्टूडेंट्स, ओके, दैट मीन्स ये क्या होगा? एक डायरेक्ट वेरिएशन. व्हेन जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड भी इंक्रीज ही हो, एंड अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो सेकंड भी डिक्रीज होती है. सो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है. ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट, वन इंक्रीज तो इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज तो डिक्रीज. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो इफ द कॉस्ट ऑफ 5 notebook is rupees, yes, 50. Okay students, and then find the
cost of, yes, 10 such notebooks. Okay students? Okay students, if 5 नोटबुक की कॉस्ट अगर ₹50 है, सो आपको फाइंड करनी है ऐसी ही 10 नोटबुक की कॉस्ट. ओके, सो आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? देयर आर मैनी टाइप ऑफ मेथड. सो फर्स्ट मेथड इज हियर. Yes, we have the cost of 5 notebook. So students, the cost of 5 notebook, that is 50. Okay, and you can find the cost of 10 such notebooks. Okay, so first of all we find the cost of 1 notebook. Okay student, that means अगर हमें 1 notebook की cost पता होगी, so हम कितनी ही notebook की cost find कर सकते हैं. Okay, so let's find the cost of 1 notebook. Okay students, so remember this one thing. Okay students, to get more we multiply. Okay, to get less we divide. Okay, so that is the important thing. Okay students, you learn it. Okay, that means अगर हमें ज़्यादा गेट करना हो सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कम गेट करना हो सो हम डिवाइड करते हैं. स्टूडेंट जैसे 5 नोटबुक थी, बट अब हमें लेस फाइंड करना है ना, सो हमें क्या करेंगे? डिवाइड. ओके, सो दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 5. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन कैलकुलेट इट. 5 1s are 5 and that is 10. Okay, and students, now we can find easily the cost of 10 such notebooks. Okay, so then the cost of 10 notebooks. Okay, so students, अब 1 notebook की cost क्या है? 10. So you can find easily the cost of 10 notebook. Okay, that means to get more we multiply. Okay, so हम multiply करेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा notebook की हमें cost find करनी है. Okay students, so that is the 100 rupees. Okay students, so that is your answer. Is that clear? Okay, so that is the direct variation. Okay, so alternative method is here. Yes, it is in direct variation, but how? Let's see. One thing is here cost and second one is here notebook. Okay student, so notebook है आपके पास and notebook की cost है. So students, कितनी notebook है आपके पास? Yes, 5 notebooks and cost is here 50. And you have to find the cost of 10 such notebook. Okay, that means 5 notebook की cost 50 है. So क्या आप बता सकते हैं कि 10 notebook की cost कितनी होगी? ये आपको find करना है. Students, as you can see here, if means ये increase हो रहा है. So बताइए आपकी यहाँ पे increase होगा या decrease? आप सोचिए, आपने 5 notebook buy की. Okay, स्टूडेंट्स, 5 नोटबुक आपको 50 रुपीज़ की मिलती है. अगर आपको 10 नोटबुक चाहिए तो सिंपल है, उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी डेफिनेटली. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स अगर 5 नोटबुक 50 रुपीज़ की है तो 10 तो उससे ज़्यादा ही होगी ना. दैट मीन्स अगर नोटबुक आपकी इंक्रीज होती है तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, ये क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन. इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. इसे लिखते कैसे हैं हम? स्टूडेंट, जिस साइड से एरो स्टार्ट है वहाँ से लिख लीजिए 5 रेशो 10 एंड इज प्रोपोर्शन टू द 50 रेशो. यू कैन यूज क्वेश्चन मार्क और एनी वेरिएबल ऑल्सो. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन मार्क. Okay, after that we product the extreme and is equal to the product of means. Okay, so that is 5 into question mark is equal to 10 into 50. Okay students, so here question mark is equal to 10 into 50 upon 5. Is that clear? Okay student, so question mark is equal to 500 upon 5. And as you can see here, 5 1s are 5, so that is 100. So question mark is equal to 100 rupees. Okay students, so that is the same answer. Okay,
अब आप इस मेथड से कर लीजिए अगर आपको ये मेथड इजी लगता है, एंड अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं वेरिएशन। ओके, दैट मीन्स पहले आप देख लीजिए कि कौन सा वेरिएशन है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसका प्रोसेस ये है। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, so now let's start exercise 7.1. So question number 1 is here. Check if x and y vary directly. Okay, in the following. That means आपको चेक करना है यहाँ पे कि जो x and y है वो क्या वेरी कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, दैट मीन्स देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो यू कैन चेक हियर, दैट इज x एंड दैट इज y. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये देखना है कि दोनों में जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट का मीन्स जो भी चेंज हो रहा है वो सब में सेम होना चाहिए रेशो। ओके, अगर हम यहाँ से देखें 2 से हम देखते हैं कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। सो 2 7s are 14. ओके, 2 5s are 10. ये 2 से अगर हम देखें कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा 11, एंड दिस वन 13. ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं 7 का रेशो इसके साथ क्या होगा। 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35 एंड 7 7s are 49. सो स्टूडेंट्स आप क्या देखिए रेशो सेम है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ रेशो सेम नहीं है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम रेशो। सो दैट मीन्स x and y is not vary directly. Okay students, is that clear? So that means there is no direct variation. Okay, यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है क्योंकि इसमें जो चेंजेस हो रहा है उसकी रेशो में वो सेम चेंज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, so ये डायरेक्टली वेरी नहीं करता। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ in B part, this is the value of x and this is the value of y. Okay, so students, we can check here 3 4s are 12. ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करके कुछ भी, बट सेम होना चाहिए। 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s are 18 and 3 7s are 21, 3 8s are 24 and 3 से कितने टाइम्स होगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6. Okay, you can check here also. 8 4s are 32, 8 5s are 40 and 8 6s are not 7s are 8 8s are 64 and 8 1s are 8 and 8 2s are 16. Students, as you can see here, there is the same ratio. Okay, 4 5 8 and 12. So same ratio as, so that means there is a direct variation. Okay students, so there is a direct variation. Okay, so now that's all for today. I hope you understand, but still if you have any doubts, you can contact or message to me. Thank you. Have a nice day.